Hello students, so I am back with a new poem, Amanda by Robin Clean. This poem is a very important poem for class 10 students and you will enjoy this poem because it is related more over to you only. So let's start the poem. First we'll study about the poet. Robin Clean is an Australian author of books for children. She writes children and young adult fiction. Some of her famous books are Hating Alison Ashley, People Might Hear You, etc. So if you want to read more about her, it is there. Now let's start with the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now this poem is dealing with a mother and a child. So mother, she is continuously telling or giving some instructions to the child. जो माँ है वो अपनी बच्ची को लगातार कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहती है. उस बच्ची को लेकर ऐसा लगता है कि जैसे उसको नैग किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती टोका जा रहा है, उसके पीछे पड़े हुए हैं सब. जैसे कि आपके संग भी ऐसा घर में होता है. यू कैन रिलेट दिस पोएम टू योरसेल्फ आल्सो. लाइक मदर के इंस्ट्रक्शंस है. फर्स्ट जो 3 लाइन्स 4 लाइन्स है वो मदर के इंस्ट्रक्शंस है. क्या मदर इंस्ट्रक्शंस दे रही है? दे डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा. वेरी सिंपल. डोंट हंच योर शोल्डर. What do you mean by hunch? Means bend, bad posture. अपने shoulders को bend मत करो. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो आप देखेंगे वो कह रही है slouch मत करो, lazy way में मत बैठो, sit up straight, Amanda. तो ये तो instructions हैं जो मदर अपनी बेटी को दे रही है. Now you will find the rest of the poem is in parenthesis. ये जो brackets हैं इनको parenthesis बोलते हैं. ये पैरेंथेसिस क्यों पोएट ने यूज किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि इसमें जो पैरेंथेसिस के थ्रू पोएट ये बताना चाहती है कि अमेंडा इज इमेजिनिंग. अमेंडा अब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है और वहां पे वो क्या सोचती है कि शी इज अ इन अ लैंग्विड एमरल्ड सी. लैंग्विड मीन्स रिलैक्स्ड, एमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर. एक समुद्र है ग्रीन कलर का, उसमें वो बिल्कुल सोल इनहेबिटेंट अकेली है. और मरमेड, जैसे कि एक मरमेड. मरमेड क्या होती है? आधी मछली आधी लड़की, तो वो बनी हुई है. और वो ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग माने स्लोली स्लोली वो वाटर में फ्लो कर रही है. दैट मीन्स she is enjoying her freedom. She wants to be alone, relaxed, and she wants nobody to nag her. Okay. Now first you also just recite this poem. Silent reading you should do. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. First we will do the literary devices. Anaphora. The first one is anaphora. It means repeated use of a word at start of 2 or more lines. Like don't bite, don't hunch, don't. So this is repetition of this word. So this is called anaphora. So you can learn this poetic device, anaphora. Okay, then assonance. Use of vowel sound. Now you must be acquainted with these literary devices because already in ball poem, in Tiger in the Zoo, we have been using all these literary devices. Assonance. Use of vowel sound O. Don't hunch your shoulders. O, O, O. And then you can see the rhyme scheme. A, Amanda, Amanda. So A, then B, A. Straight B, and then A again because Amanda, Amanda, Amanda. So A, and which way B. Okay. And then C, C, C. C, me. Okay. Then you can see me. So B, B. C, C, sorry. C, C, C. See me, bliss. You can see this. Okay. Now the word meanings are very important. Hunch, hunch means bend. Slouching means sitting in a lazy way. Okay, and then languid, languid means relaxed, relaxing. Emerald, green color. Emerald होता ना green color का पन्ना बोलते हैं इसको. Inhabitant, resident, निवासी वहाँ की. Drifting, carried slowly by the water, blissfully, happily. So this poem is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes and how she imagines her life to be.
कैसे इमेजिन कर रही है कि उसकी लाइफ कैसी है. The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails, which is a bad habit. Next, she asks her to sit straight without bending her shoulders. Amanda, who is in habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because the mother wants her to sit in the right posture. तो मदर की तो कोई गलती नहीं है ना. मदर तो अपनी बच्ची को हर चीज अच्छी सिखाना चाहती है, इसीलिए उसको वो पॉइंट आउट कर रही है. लेकिन at this point of time when she is being scolded by the mother, she imagines herself to be in a deep sea. तो दुनिया में खो जाती है कि वो एक deep green sea में है ना. She says that she wants to be the only resident of this blissful, beautiful green sea. She imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a very relaxing way. तो वो वहाँ पे रिलैक्स होकर रहना चाहती है कि यहाँ कोई उसको टोका टाकी ना करे, एक मर्मेड की तरह. Okay, she says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. तो वहाँ के relaxing environment को enjoy करना चाहती है और वो wave के संग carried away हो जाना चाहती है. Okay, so next slide is very interesting. Here you can see the mother. She is continuously nagging the child, telling her something. And here is Amanda. You can see the picture. She is very upset. What mother is giving her instructions? Biting nails. Don't bite your nails. Then hunching shoulder. You can see the hunching shoulder, normal spine, and you can see the spine which has been hunched. So if you hunch your shoulder, your spine will be like this, and your posture will be then straight. The mother is telling her to sit straight, and this is called slouching. When you lie lazily on some sofa or something. So these are the instructions given by the mother. Now I hope the instructions are very clear to you. Now, what the child imagine? Now Amanda is imagining that she's a mermaid. You can see a mermaid, half fish and half girl. And she's imagining. She's imagining that she's in a languid sea. You can see the languid sea, very peaceful, relaxed sea. She's sitting there alone. Alone she's there in the sea. And in a mermaid sole inhabitant. Nobody else is there. An emerald green color sea. You can see the emerald green color sea. So these pictures you can imagine. So a lot of imagery has been used in the poem. You can also enjoy the poem. I hope the first stanza is clear to you. Now next. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Again, mother is inquiring her. She's asking her whether she has finished her homework, whether she has cleaned her room, tidy her room, whether she has cleaned her shoes. All these things are very common, which our parents are always asking us. So it's nothing very difficult or which you can say scolding. So what now, Amanda? Again, its lines are in parenthesis. So what Amanda is now thinking? Amanda is thinking that she's an orphan. Orphan means without parents, जिसके माँ बाप नहीं होते, अनाथ. Roaming the street, जो रोज street में घूम रही, गलियों में घूम रही है. And I pattern soft dust with my hushed bare feet. और नंगे पैरों से वो धूल में अपने पैरों में धूल के निशान बनाती हुई चल रही है, यानी कि मिट्टी में पैर के निशान बनाती हुई जा रही है, यानी कि फ्री. शी वांट्स टू बी फ्री. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और वो कोई साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं है, कोई अल्लाह गुल्ला नहीं है, वो अकेली है और शी इज एंजॉयिंग हर फ्रीडम. यानी कि वो उस हद तक भी सोच रही है कि वो ऑर्फन है, मैं कोई ना हो उसका, और वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके. Okay, now I will recite the poem, and after me you have to also recite. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Okay. Now who is an orphan? A child whose parents are dead. Okay. Now literal devices. Now you tell me the literal devices. Yes, anaphora, very good. Because repeated use of word. Did you finish? Did you tidy? Okay, so this is anaphora. Rhyming scheme again you can make out. A D. Now why? Because C से rhyme नहीं हो रहा ना, C ऊपर वाली line में था तो D आ गया, फिर D A E. Okay. Amanda. You can see the rhyming scheme, very easy. Assonance again, O. The repetition of the word Amanda. Metaphor. Silence is golden. Silence has been compared to gold. That means silence is said to be glorious like gold in color. So silence कैसा है यहाँ पर? Silence का comparison एक golden color से हुआ है, जो glorious होता है, जो बहुत चमकीला होता है. तो उसका silence जो था वो हमेशा glorious है, और freedom is sweet. Freedom का comparison किससे किया गया है? Sweetness से. Freedom का फल हमेशा अच्छा होता है. Freedom is very sweet.
तो यहाँ पर जो चाइल्ड है उसका इमेजिनेशन है अमेंडा का. So here the poet says that Amanda mother is inquiring her about whether she has done her homework or not. Then she asks her whether she has cleaned the room or not. Moreover, she is also reminded to clean her shoes. तो ये 3 instructions की माने उसको पूछे दिए. Here we can see that mother is constantly asking a question regarding her homework being done or not, whether she had cleaned up her room and shoes or not. But on the other hand, तो माँ तो constantly question पूछे जा रही है, लेकिन अमेंडा क्या कर रही है? Amanda is listening to her mother's instruction. She imagines herself to an orphan who is roaming in the street. वो अपने आप को एक orphan की तरह imagine कर रही है जो गलियों में घूम रही है. This means that she imagines that if she would have been without parents, she would have walked freely in the streets. तो वो सोच रही है कि अगर वो पेरेंट्स के बिना होती तो वो स्ट्रीट में खूब मजे से घूमती, गलियों में आराम से फिरती, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता. और वो क्या करती? शी वुड हैव ड्रॉन डिजाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट. और जो धूल होती, जो जमीन की मिट्टी होती, उसके ऊपर वो अपने पैरों के निशान बनाती, यानी नंगे पैर मिट्टी में चलती और अपने पैरों के निशान बनाती. So we can see that she thinks opposite to her mother. Her mother wants her to keep everything neat and clean, but Amanda wants to play in dust with her bare feet. Moreover, she's so fed up of these constant instructions from her mother that she says silence is golden. That means she's fed up with the mother's instruction and she wants silence is golden, which means silence is very crucial and precious. That means silence is very important in life and it is very precious also. Further says that freedom is sweet. She means she never feels free when she is with her mother. That means mother is always curtailing her freedom. So she wants to be free. Clear? Okay, now we will see beautiful animations and poems. Here again, mother shouting at Amanda. Finish your homework. Now see the homework means so many. You must be agreeing with this picture because you are also getting so much of homework. And tidy your room. Clean your room. Swapping. Everything you have to do. Tidy your room. Then clean your shoes. You can see, clean your shoes. So these are the mother is asking her continuously. And Amanda, she's fed up with all these questions. Now what Amanda is imagining, see. Amanda is imagining she's an orphan. Orphan, है ना, देख रहे हैं आप? And she is roaming about in the street. Like ये बच्चा घूम रहा है street में, है ना? And dust feet. और देखो नंगे पैर वो अपने पैरों के निशान धूल में बनाना. तो ये वो अमेंडा की थिंकिंग है जो अमेंडा सोच रही है. शी वांट्स टू अल्टीमेटली टू बी फ्री. ये चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे. अगेन nagging, again instructions by mother. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. माँ क्या बोल रही है कि वो चॉकलेट्स मत खाओ, बिकॉज चॉकलेट खाने से क्या हो रहा है, योर एक्ने, पिंपल्स आ रहे हैं. और जब मैं तुमसे बात करूं मेरी तरफ देखो. अमेंडा जो है शी डजंट पे अटेंशन टू मदर, शी इज लुकिंग हियर एंड देयर. वो बोल रही है नहीं इधर देखो मेरी तरफ. अमेंडा again in parenthesis she is imagining she is a Rapunzel and I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright here. So first, we will recite the poem. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never never let down my bright hair. Okay, so you will also recite the poem. Okay, what do you mean by acne? Acne means pimples. Now, who is Rapunzel? Rapunzel is a girl in a fairy tale by Brother Grimm. So ये एक स्टोरी बुक है, उसमें ये एक इमेजिनेटरी कैरेक्टर होता है जिसमें एक लड़की है, उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और वो एक टावर में, ट्रैंक्विल टावर मीन्स अकेली सुनसान टावर में रहती है. और वो अपने बालों के नीचे जब करती है तो राजकुमार उसके बालों को पकड़ के ऊपर आ जाता है. ऐसी स्टोरी है, एक फेरी टेल है ये. तो उसी का कैरेक्टर है ये रापुंजल. तो ट्रैंक्विल मीन्स काम, क्वाइट, और रेयर मीन्स अनकॉमन. अब देखिए मदर जो है वो उसको फिर से डिसअलाउ हर टू ईट चॉकलेट. मदर उसको चॉकलेट्स खाने के लिए मना कर रही है. क्यों? शी रिमाइंड्स हर ऑफ पिंपल दैट अमेंडास फेसेस ड्यू टू ईटिंग. तो उसको बता रही है कि तुम जो चॉकलेट्स खाती हो उससे तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं. एट लास्ट उसको स्कोल्ड कर रही है.
अब डांट रही है माँ उसको for not paying attention to what her mother says. At this moment, Amanda imagines herself to be a Rapunzel. Rapunzel was a character from a fairy tale that was captured in a tower by a witch. एक चुड़ैल ने उसको उस टावर में रखा हुआ था. The witch used to climb the tower with the help of long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. So now Amanda wants to be Rapunzel because she feels that life in a tower will be peaceful and unusual. वो सोचती है कि मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं लटकाऊंगी ताकि वो जो चुड़ैल थी वो उसके बाल पकड़ के ऊपर आती थी, है ना, उसने उसको बंद करके रखा था पिंजरे एक टावर में. टावर मीन्स एक किला टाइप का, अभी आप पिक्चर में भी देख लेंगे. तो वो कहती है कि क्योंकि टावर में लाइफ कैसी है, बहुत ही पीसफुल है ना, अनयूजुअल है. तो वो कहती है कि शी विल बी फ्री और वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी. जब वो अगर टावर में चली जाए, रापुंजल बन जाए, तो वो फ्री हो जाएगी और पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी. उसको वहाँ कोई टोकेगा नहीं, उसकी मम्मी नहीं होगी वहाँ पे उसको बोलने के लिए. और वो ये भी कहती है, शी कंफर्म्स दैट टू हरसेल्फ दैट शी नेवर लेट हर हेड डाउन so that nobody could come to her in the tower. So आप देखिए चाइल्ड का इमेजिनेशन कि वो कहती है कि मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी ताकि कोई मेरे बालों को पकड़ के ऊपर आ ना सके, लेकिन कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके. शी वांट्स टू एंजॉय हर फ्रीडम. लिटरेल डिवाइसेस क्या थी, इसमें एक नई लिटरेरी डिवाइस में पढ़ेंगे, एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है, फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रैपुंजल. ये कल्पना का है जो कैरेक्टर, जो फेरी टेल का कैरेक्टर है रैपुंजल, वो एल्यूजन है. राइम्स की इन अगेन AAFAGGG. ओके. एजोनेंस का यूज है ई और ओ साउंड वॉवल का. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. ई और ओ साउंड का रेपिटेशन है. कॉन्सोनेंट्स भी है इसमें, कॉन्सोनेंट का भी रिपीटेशन है. आर आर, Rapunzel, I have not a care, bright hair, है ना. आर 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 साउंड भी रिपीट हो रही है और वर्ड मेंढा भी बार बार रिपीट हो रहा है. ये तो हो गया इसका लिटरेरी डिवाइसेस. चलिए अब हम इसकी ब्यूटीफुल एनिमेशंस को एंजॉय करते हैं. ओके. ये देखो मदर यहाँ शाउट कर रही है मैंडा के ऊपर. ये मैंडा खड़ी हुई है. मदर क्या कह रही है, डोंट ईट चॉकलेट. चॉकलेट्स बहुत खाती है. चॉकलेट से क्या हो रहा है, एक्ने. यू कैन सी द एक्ने, पिंपल्स एंड लुक इन आईज. माँ बोल रही है तुम मेरी आंखों में देखो, जब मैं तुमको देखती हूँ तो मेरी तरफ देखो, यानी कि वो उसको निग्लेक्ट कर रही है. तो मदर को गुस्सा आता है. तो ये इंस्ट्रक्शंस माँ है उसको स्कोल्ड कर रही है और उसको फॉरबिड कर रही है चॉकलेट खाने से. नाउ यू सी, इमेजिन ये है वो ट्रायंगल टावर. ये देख रहे हैं आप टावर, और इस पे वो देखिए विच जो है वो उसके बालों को पकड़ के कैसे ऊपर जाती थी. देख रहे हैं आप, यू कैन सी इन द पिक्चर. तो वो यही कह रही है कि मैं इसी टावर में रहूंगी अकेली, बिल्कुल सुनसान में, और अपने बालों को कभी नहीं लटकाऊंगी ताकि कोई ऊपर आ ना सके. वांट्स टू एंजॉय फ्रीडम. ये वो ट्रायंगल टावर है. ये सब इमेजिनेशन. ये रपुंज़ल है, इसके लॉन्ग हेयर हैं, ये जो दिख रहे हैं आप, लॉन्ग हेयर बंधे हुए हैं उससे और टंगे हैं नीचे तक. तो वो कह रही है रपुंज़ल लोनली रेयर टावर, और वो कह रही है आई विल नेवर लेट माय हेयर डाउन so that nobody can come. So you see, so beautiful imaginations are there in the poem. नाउ द लास्ट वन. मदर कह रही है स्टॉप. अब ये सब सुन के रिमांडा का मुंह बन जाता है. तो वो कहती है, मदर कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. सल्किंग बंद करो, बी इन अ बैड मूड, है ना. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. और वो कह रही है कि सल्किंग बंद करो, बैड मूड बंद करो, मूडी, अनस्टेबल. तुम्हारा बहुत मूडी रहता है, अनस्टेबल रहती हो तुम हमेशा, कभी खुश हो जाती हो, कभी दुखी हो जाती हो, कभी कैसा तुम्हारा मूड बदलता रहता है. और ऐसा कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग कर रही हूँ, यानी मैं तुम्हें हैरेस कर रही हूँ, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ. तो देखिए दिस इज अ सटायर कि उसकी माँ उसको परेशान तो कर ही रही है, लेकिन वो कह रही है कि कोई सोचेगा कि मैं परेशान कर रही हूँ, क्योंकि वो उसको परेशान कर रही है. तो अमेंडा, तो चलिए इस बात को पढ़ लेते हैं पहले एक बार. आप लोग भी मन में पढ़ लीजिए. स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. अब आपने भी पढ़ लिया. और सल्किंग मतलब क्या है, टू बी इन बैड मूड. मूडी माने अनस्टेबल. नैग्ड माने हैरेस. हैरेस करना माने किसी के पीछे पड़ जाना. अमेंडा. अब लिटरल डिवाइसेस इसमें क्या है, एलिट्रेशन. स्टॉप दैट सल्किंग, एस 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 है ना, एलिट्रेशन है. रेपिटेशन है अमेंडा वर्ड का. राइम स्कीम आप देख ही रहे हैं, AAHA. अमेंडा अमेंडा, यू अमेंडा, AAHA. बहुत सिंपल है. Okay. तो अमेंडा मदर उसको वार्न कर रही है फॉर बिहेविंग इन अ वेरी ऑड मैनर. वहाँ कह रही है तुम कितने ऑड तरीके से बिहेव कर रही हो. शी आस्क्ड हर टू स्टॉप बीइंग इन अ बैड मूड. वो कहती है बैड मूड में मत रहो. मोreover शी ब्लेम्स हर ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड. और वो उसको ब्लेम भी कर रही है कि तुम्हारा मूड हमेशा इतना अनस्टेबल क्यों रहता है, एक सा क्यों नहीं रहता.
She also scolded her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. So here we can say that Amanda is always pointing out by her mother on every small thing, but she can't react to this. If she reacts toward this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her that she would not behave like this, as others would think that Amanda mother is dominating toward her child. यानी कि वो अमेंडा को इतना उसकी माँ लगातार पॉइंट आउट कर रही है, लगातार उसको टोक रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि अमेंडा अपने मूड से ये शो करे कि वो उसकी माँ उसके पीछे पड़ी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो उसको नैग तो कर रही है, लेकिन शी वांट्स हर नॉट टू शो टू एनीबॉडी दैट शी इज नैगिंग हर. तो ये उसी के संग ये पोएम्स एंड होती है. वेरी सिंपल पोएम अबाउट नैगिंग अ चाइल्ड. ओके, तो आप आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम. इसके एनिमेशन देख लेते हैं. ये देखिए, सल्किंग, कैसी ना सल्किंग कैसे मुंह बना के खड़ी है. ये नैग, ये नैगिंग कर रही है, टोकना टोकना टोकना. ये मूडी, आप ये देख रहे हैं अमेंडा इसमें बहुत ज्यादा मूडी है, और वो उसका चेहरा कैसे उतरा हुआ है, उदास है. तो ये मूडी, सल्किंग, नैगिंग. नाउ यू, आई होप ऑल दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द समरी ऑफ द पोएम. यही जो हमने जो पढ़े हैं जितने स्टैंजा में जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसी को नटशेल में एक छोटे में ये उसी चीज को लिखा है. अब आप लोग उस समरी को भी याद कर लेंगे. इसमें आप अपने हिट पॉइंट्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, कि उसकी मदर उसको किस किस चीज़ों के लिए नैक कर रही है, उसको याद कर लीजिए. और वो किन किन चीज़ों में इमेजिन कर रही है. जैसे फर्स्ट वो इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है, सेकंड वो इमेजिन करती है कि एक ऑर्फन है, और थर्ड वो इमेजिन करती है कि वो रैपुंज़ल कैरेक्टर. ये तीन चीज़ें वो इमेजिन कर रही है. इसको आप लिख लीजिए कि ये तीन चीज़ें इमेजिन कर रही है, और उसकी मदर उसको किन किन चीज़ों के लिए टोक रही है वो उनको बना लीजिए. तो आपकी पूरी समरी तैयार है. लास्ट की ये लाइन आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि द कांस्टेंट nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. लास्ट में वो nagging से इतनी दुखी हो जाती है अमेंडा कि वो लास्ट वाले स्टैंजा के बाद इमेजिन ही नहीं कर रही है ना. she used to do so, वो क्यों करती थी इमेजिनेशन. ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि why she used to imagine like this. Because she wants to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के harassment और dominance से बचना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा करती थी. ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो हिट पॉइंट्स रहते हैं, मैं उनको हमेशा अलग से बच्चों को क्लास में लिखवा देती हूँ. आप भी अपने छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि क्योंकि 10th क्लास में बहुत लॉन्ग लेंदी आंसर एक आधी आता है, बाकी आपको शॉर्ट आंसर आते हैं. तो टू द पॉइंट लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. तो पोएम कन्वेज द मैसेज दैट चिल्ड्रन नीड टू बी अलाउड मोर लिबर्टी. इसका मैसेज क्या है कि बच्चों को ज़्यादा लिबर्टी मिलनी चाहिए. एक्सेसिव नैगिंग मेक्स देम डिफेंट. डिफेंट मीन्स उनका डिस्कलरेशन हो जाता है, उनकी रौनक चली जाती है. एंड दे टर्न अ डेफ ईयर, और वो स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, और वो सुनना बंद कर देते हैं. दे डेवलप अ काइंड ऑफ डिसलाइक फॉर रियल लाइफ and start escaping in the world of dream and imagination. बच्चों को ज्यादा टोकने से बच्चे जो है वो रियल लाइफ से उनको नफरत सी होने लगती है, वो डिसलाइक करते हैं और एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहना शुरू कर देते हैं. पैरा स्टैंजा 2, 4 and 6 पैरेंथेसिस में है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट ऑफ अमेंडा. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पैरेंथेसिस में क्यों है, तो आपको मालूम है ब्रैकेट्स में क्यों है, क्योंकि वो उसकी इनर थॉट्स को अमेंडा की बता रहे हैं. ठीक है. They can be taken as the reaction of the child for the instructions given in 135 स्टैंजा में जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसका रिएक्शन है. आयरनी क्या है? आयरनी माने क्या होता है कि इस पोएम का सबसे ज्यादा चीज क्या है कि कह कुछ रहे हैं और मतलब कुछ निकल रहा है. तो मतलब क्या है, लास्ट स्टैंजा में पोएम की क्वाइट आयरनिक है, बिकॉज इट इज अ मदर हु नैग्स हर, है ना. उसकी माँ उसको लगातार नैग कर रही है, लेकिन जिसकी वजह से अमेंडा सैड है, डिसअपॉइंटेड है. बट द मदर आस्क्स हर नॉट टू फील सैड, बिकॉज दैट वे एवरीवन कुड फिगर आउट दैट शी हैज बीन नैग्ड. उसकी माँ कहती है तुम सैड मत हो, डिसअपॉइंट मत हो. क्यों? हर कोई सोचेगा दैट आई एम नैगिंग यू, बट एक्चुअली शी इज नैगिंग हर. दिस इज द irony of the poem. Okay, now these are the question answers. You can go through them. These are all very simple question answers, and I have explained each and everything you. And these are the stanza questions. You can go through them slowly. You can pause your video. You can note down. You can learn them. Okay, now this is the long answer. Do you know the story of Rapunzel and why does she want to be a Rapunzel? You can just go through them. These are the extra questions. What does girl yearn for? Yearns means वो क्या चाहती है. Okay. Then now these are the question answers which I have taken from board papers which have already been there. तो ये practice के लिए आपको बहुत इसके answers भी दिए हैं. You first
व्हाट यू डू स्टूडेंट्स, आप इनको करिए और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को चेक करिए। वीडियो को पॉज कर करके आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो ये इसलिए वीडियोस बना के दिए जा रहे हैं कि जब आपके पास सुविधा हो आप इसको आराम से देखें और आराम से अपनी स्टडीज को तैयार करें। पूरे आपके 10th क्लास के जितने इंग्लिश के हैं, पहले मैं पोएम के सारे वीडियो दूंगी, उसके बाद चैप्टर्स के आएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे और मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। ये सारे आपके A to Z हर चीज़ है इसमें, शॉर्ट आंसर्स भी मैंने दिए हैं। A to Z everything is there. You need not go anywhere after watching this video. Okay. So thank you. Subscribe and keep watching. Don't go to sleep like this in the picture. Okay. Thank you, students. Bye.